All right, guys. आज हम पेपर 5 प्लानिंग एनालिसिस एंड एवेल्युएशन करेंगे मई जून 2019 वेरिएंस 52. इन द लास्ट क्लास वी हैव डन मई जून 2019 वेरिएंस 51. आज वेरिएंस 52 करेंगे. इस पेपर का ऑफिशियल टाइम है 1 hour 15 minutes. Let's see what we have in the paper. Okay. A student is provided with samples of 6 metal carbonate ores known to be the ores of the metals barium, calcium, copper, iron, lead, and zinc. All right. So we have actually 6 metal carbonate ores. All the ores contain carbonate ions. That's an interesting statement. And some might also contain hydroxide ions. Okay. Each ore sample is grounded up and a measured mass of the ore is reacted with an excess of dilute hydrochloric acid. So that's the most important point, that hydrochloric acid is in excess. The carbon dioxide produced by the reaction is collected over water. The volume of gas collected is recorded. तो अगर volume of gas collected recorded है, each ore is tested 3 times. Okay. ये भी एक important बात है कि why 3 times, right? Okay, now the question is name the independent variable. तो मैंने आपको कहा था कुछ अर्से पहले कि independent variable किसे कहते हैं? What we change. और हम change क्या कर रहे हैं? हम actually metal carbonate 6 यूज कर रहे हैं. तो 6 metal carbonates को जो है वो हम change करेंगे, right? तो हम यहाँ लिख देते हैं types of metal carbonates. 1 by 1 सबको 6 के 6 change करेंगे. Now the next is dependent variable. Dependent variable मैंने लास्ट क्लास में मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया आपको पेपर 5 के कि what we measure is dependent variable. So what we measure volume of gas collected because it is recorded, right? So volume of carbon dioxide gas collected. आपको ये भी पता है कि why are you so dependent? Meaning dependent variable has to be on the y-axis. इसका मतलब volume of carbon dioxide has to be on the y-axis, whereas independent variable has to be on the x-axis. इसका मतलब types of metal carbonate has to be on the x-axis, right? Let's move on to the next part. Apart from mass of ore, state a variable that should be controlled. Control variable needs to be constant. यानी ये वो वेरिएबल है जो हर हालत में कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट हो सकता है? जाहिर सी बात है, मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेरे पास डाइल्यूट फॉर्म में, तो मैं इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कांस्टेंट नहीं, एक्चुअली ये ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट के अंदर है. क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट के अंदर है, लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट या मेंटेन करने की जरूरत है ही नहीं. ऑलराइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि लिख देते हैं यहां पर कि HCl is in excess so its concentration cannot be measured.
सही है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। सो व्हाट्स लेफ्ट नाउ, जाहिर सी बात है आई थिंक इन द इंटायर एक्सपेरिमेंट मुझे टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा। जो टेम्परेचर मैं बेरियम कार्बोनेट के लिए रखूंगा वही कैल्शियम कार्बोनेट, वही कॉपर कार्बोनेट, वही आयरन, वही लेड कार्बोनेट और वही जिंक कार्बोनेट के लिए भी होना चाहिए। इसका मतलब टेम्परेचर नीड्स टू बी कंट्रोल। अच्छा, टेम्परेचर को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्शन जो है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो वी नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेंटेन रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, बिकॉज if changes temperature because if temperature changes rate of reaction also changes. So this will change the volume of gas. All right. Now the next is the student plans to collect the carbon dioxide produced over water, over water, over water. Okay. So this might be the source of error. Why this might be the source of error? Because carbon dioxide is soluble in water. वो तो वाटर में डिसॉल्व होगी तो कलेक्ट कैसे करोगे आप? Because carbon dioxide is water soluble. All right. Draw a labeled diagram of the apparatus that could be used to carry out these experiments. The apparatus should allow the accurate recordings of the carbon dioxide produced. Okay. Mm, okay. 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 अच्छा, एक चीज और, ये तो सोर्स ऑफ एरर है, बट ऑब्वियसली इसमें यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है कि अगर मैं ओवर वाटर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो जार है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट करने के लिए वो भी इन्वर्टेड होना चाहिए, राइट? इन्वर्टेड गैस जार। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम एक वेसल ले लेते हैं। ठीक है जी, और वेसल को हम इस तरह से बना लेते हैं। उप्स। ओके। ठीक। एंड जाहिर सी बात है हम ओवर वाटर कर रहे हैं कलेक्शन, तो इस तरह से रख लीजिए। ठीक है। और ओह, ओके। सी, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग्स चाहिए उनको, तो गैस जार से तो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी क्योंकि गैस जार पे तो कोई भी ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता, राइट? इसका मतलब एक्यूरेट रिकॉर्डिंग्स के लिए यू नीड टू यूज मेजरिंग सिलेंडर, एंड ऑब्वियसली वो मेजरिंग सिलेंडर इन्वर्टेड होना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल
when you read the question. All right, so ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। ठीक है। My goodness, I'm so bad in drawing. Yeah, it makes sense now. ठीक है। एंड ग्रेजुएशन मार्क होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन मार्क ये हमने दे दिए हैं। ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये ट्यूब है आपके पास, ये भी ट्यूब है आपके पास। ऑलराइट, चलो। एंड ऑब्वियसली गाइस, इसको यहां से हमने सील भी तो करना है ना रबर बंक के थ्रू। सो इसको सील कर दिया हमने रबर बंक के थ्रू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हमारा वाटर भी है। सो चलिए हम लेबल कर देते हैं बेटा इसको। ये हमारा रबर बंक है, ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने यहाँ पर कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, ग्रैन्यूल्स ऐड कर दिए हैं। ये वाटर ट्रफ है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, एंड ऑब्वियसली यहाँ से गैस कलेक्ट हो रही होगी। तो ये गैस कलेक्शन है, सही है। तो ये आपका हो गया बेटा बंग, ऑब्वियसली रबर बंग होगा ये आपकी कॉनिकल फ्लास्क, ये आपका HCl है डाइल्यूट एक्सेस अमाउंट के अंदर, ये आपका हो जाएगा सॉलिड कार्बोनेट। दिस मस्ट बी योर डिलीवरी ट्यूब। ये आपके पास है ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द एक्यूरेट रीडिंग। ये आपका गैस कलेक्शन है, ये आपका ट्रफ है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वाटर है। सो लेबल मैंने कर दिया है सारा, ये भी लेबल्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यस, लेबल कर दिया है। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लिया है, और ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर को इन्वर्ट रखा है। ओके, आगे चलते हैं। वो पूछ रहे हैं स्टेट 1 वीकनेस स्टेट करने के लिए कह रहे हैं इन द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड ओवर वाटर। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये सोर्स ऑफ एरर है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, राइट। सो वीकनेस इन द प्रोसीजर, आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर सॉल्युबल, is soluble in water. So collecting gas over water is inaccurate. So collecting gas over water is inaccurate. Now the next part is change in apparatus. तो जाहिर सी बात है, इस मेजरिंग सिलेंडर को यूज करने के बजाय हम गैस रेंज यूज कर लेते हैं।
So gas collection can be done in the gas range instead of measuring cylinder, right? उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं 3 experiments for each 6 ores are carried out and the final gas volumes are recorded in the table. All 18 experiments use exactly the same mass of the ore. सही है. Okay. वो कह रहे हैं the students uses the results to obtain an average volume of carbon dioxide produced for each ore and record it in the table. Okay. So क्या किया उन्होंने कि हर एक्सपेरिमेंट की आपको वैल्यू दी हुई है, इन तीनों को उन्होंने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, तो आंसर ये आ जाएगा. करके भी देख लेते हैं, एक वैल्यू करके दिखा देते हैं हम आपको. ये है 67 प्लस 70 प्लस 69, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मेरे पास आंसर है so my answer is 68.66. तो इन्होंने उसको राउंड ऑफ करके 69 कर दिया. तो मेरे ख्याल से ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये राउंड ऑफ होकर लिखी हुई है. सही है, ये याद रखिएगा कि उन्होंने क्या किया है यहाँ पर. सही है कि इन तमाम वैल्यूज को उन्होंने ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया. सेम हेयर सेम हेयर. वो कह रहे हैं suggest another reason why each ore is tested 3 times. तो अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि एक्सपेरिमेंट की जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाए. और एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है ताकि आपको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाए. ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि why it is tested 3 times to increase the reliability of the experiment. और जब रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ती है तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं. ठीक है ना, तो आप नोट करें क्लोज वैल्यूज हैं, कंसिस्टेंट हैं सारी की सारी वैल्यूज, कंसिस्टेंट है सारी की सारी वैल्यूज, कंसिस्टेंट है सारी की सारी वैल्यूज, कंसिस्टेंट है सारी की सारी वैल्यूज. सी, तो रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंक्रीज किया जाता है. टेस्टेड 3 times increases the reliability of the experiment by getting the consistent result. ये लिख देते हैं यहाँ पर टेस्टेड 3 times, oops, tested 3 times increases the reliability of the experiment by getting consistent result, by getting consistent result. In the same way, क्योंकि प्रोसीजर तो सेम ही होता है. ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं द स्टूडेंट मेड एन error in processing the data to obtain the average volume of carbon dioxide produced for one of the ores. State the error made by the student and calculate the correct value. error तो चेक कीजिएगा 67 70 69 कंसिस्टेंट वैल्यूज हैं. 81 दिस कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट, ये 68, ये 70, ये 55, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है इसका मतलब, और यही वो एरर है. राइट,
सो ये एरर कहाँ पर है? सिड्राइट ओर के अंदर है विच कंटेन आयरन। तो ये 68 है, ये 70 है, तो इट मस्ट बी 69 और समथिंग लाइक दैट। तो ये वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं आ रही हमारे पास, राइट? इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द anomalous पॉइंट। तो स्टेट द एरर। एरर ये है हमारे पास, ये anomalous पॉइंट में चला जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं है ये रिजल्ट। ठीक है, सो करेक्ट वैल्यू, अच्छा करेक्ट वैल्यू भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये एरर में चला जाएगा तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज लेनी चाहिए, एक है 68 और एक है 70। दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, तो करेक्ट वैल्यू क्या आएगी? 68 plus 70 is 38 divided by 2 is getting 69. So instead of 64 the value should be 69. तो ये करेक्ट वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, this is going to be your correct value, right? And this is the anomalous point, ये भी ध्यान में रखिएगा। So हम यहाँ लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कि in siderite reading is not consistent. In siderite reading is not consistent. So 55 cm cube must be the anomalous point. ठीक है, so during the process of data average, during the process of average value data, during the process of average, no, during the process of taking average value, we shouldn't consider 55.0. We shouldn't consider 55 cm cube. तो करेक्ट वैल्यू के लिए ये मैंने करेक्ट वैल्यू यहाँ लिखी थी, मैं इसी को ले लेता हूँ बेटा, यही वर्किंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। सही है, तो करेक्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 69 यहाँ डाल दीजिए कि ये करेक्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं a student suggested that the percentage of carbonate ions could be obtained by carrying out titrations of the ground up ore samples with hydrochloric acid. Okay, percentage of carbonate ion obtained हो सकता है अगर हम टाइट्रेशन कैरी आउट करें between ore and hydrochloric acid. वो कह रहे हैं explain why a titration would not be a suitable method to determine the percentage of carbonate ion in some of these ore sample. देखो जब भी टाइट्रेशन की जाती है दो soluble substances या दो soluble compound आपस में रिएक्शन करते हैं, राइट? तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि टाइट्रेट और 1 मार्क का ये पार्ट है, सो हम यहाँ लिख देते हैं टाइट्रेशन takes place between two soluble substances, between two
soluble solutions या substances, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो आप और यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट का है, बेरियम कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, लेड कार्बोनेट है, आयरन कार्बोनेट है, ये मेजॉरिटी ऑफ द कार्बोनेट जो है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि टाइट्रेशन वुड बी सुटेबल मेथड फॉर दिस determining the percentage of carbonate. So most of the these metal carbonates are insoluble in water. So we cannot use them in titration. ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं rhodochrosite is the carbonate ore of manganese and does not contain hydroxide ions. 2 gram of rhodochrosite produces 148 cm cube of carbon dioxide under room condition in its reaction with excess hydrochloric acid. That is the equation जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इस इक्वेशन में ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ऑलराइट। इस इक्वेशन में ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ये भी ध्यान में रखिएगा। Calculate the percentage of manganese carbonate in rhodochrosite. Give your answer to 3 significant figures. The molar volume is this. The relative atomic masses of element is given. Okay. So since we know कि जनाब हमारे पास 148 cm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट step in this calculation, moles of carbon dioxide, वॉल्यूम है मेरे पास 148 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 24,000 सेंटीमीटर क्यूब से, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.166 into 10 to the power minus 3 moles, राइट। जो मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स मैग्नीज कार्बोनेट के होंगे, बिकॉज 1:1 का रेशो है। तो मैग्नीज कार्बोनेट वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 1:1 का रेशो है। तो अगर 6.166 into 10 to the power minus 3 मोल्स हैं, तो बताइए मोल्स ऑफ मैग्नीज कार्बोनेट कितने होंगे? सेम हो जाएंगे 6.166 into 10 to the power minus 3 moles, right? Now in order to get the percentage, obviously I need to find out the mass of manganese carbonate. In order to do that, I need to find out the MR of MnCO3. So भाई MR of MnCO3 calculate करें। मैग्नीज मेरे पास है 54.9 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3, तो यहाँ से मेरे पास MR आ जाएगा 114.9. So to find the mass of MnCO3, 114.9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.166 into 10 to the power minus 3 से। So मेरे पास मास आ जाएगा 0.7085 ग्राम। मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीज कार्बोनेट निकालना है, तो मास ऑफ मैग्नीज कार्बोनेट है which is 0.7085 ओवर मास ऑफ मैग्नीज कार्बोनेट कितना गिवन था 2 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2.00 into 100,
तो आपके पास परसेंटेज कितनी हो जाएगी 35.4%। सो ये हो जाएगा 35.4%। ऑलराइट, से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये सैंपल का मास ऑफ सैंपल है ये। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं अ टीचर सजेस्टेड दैट द मास चेंज, आई रिपीट, मास चेंज फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ ग्राउंड अप सैंपल ऑफ क्रोसाइट could be used to determine the percentage of carbonate in the sample. The teacher told the students to strongly heat a ground up sample of the ore in a crucible. In a crucible, वो कह रहे हैं state the measurements of the student should make to determine the percentage of manganese carbonate in the sample of road crocite. So crucible, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल लेंगे, फिर मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रोड क्रोसाइट बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग लेंगे। ठीक है, और फिर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्टेड भी लेंगे। तो ये 1 मार्क के लिए दैट्स लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली, दैट्स नॉट फेयर। तो आप मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल लोगे, दूसरा आप लोगे मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रोड क्रोसाइट before and after heating। ठीक है, सो दैट हमें ये पता चले कि कितना डिकम्पोज हुआ है रोडोक्रोसाइट, राइट। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि भाई अब मजीद हमने हीट नहीं करना। भाई मजीद हीटिंग का इस तरह पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर ऑब्जर्व नहीं होगी, या आप कह लीजिए कि जो मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रोड क्रोसाइट बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग है वो फर्दर चेंज नहीं होगा। ये बात भी लिख देते हैं। नो नो फर्दर चेंज इन मास is observed, then and obviously ठीक है, that's it. I think it's more than enough for 1 mark. Next is explain how the student can ensure the result in E2 are accurate as possible. तो जाहिर सी बात है, अगर आपने एक्यूरेसी की बात करनी है तो आप बताएंगे कि नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन नाउ, नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस is given off, या no further change in mass of root crocide is observed। यानी यही चीज फिर दोबारा से लिख देते हैं, यही चीज उठा के लिख देते हैं यहाँ पर। सही है, ठीक है जनाब। So that's the end of question number 1. I hope it makes sense to you. I hope you understand the logic behind this. Let's move on to the question number 2. That seems like a electrochemistry. An investigation is carried out to find the percentage of copper in brass nail. Brass nail. Brass nail. Brass is basically an alloy. ठीक है, ये याद रखिए। The brass nail
is dissolved in concentrated nitric acid and the resulting solution is diluted with distilled water. So basically this is dilution. Right? Copper ions are formed in this reaction. All right. Use the electrode potential shown to write a balanced ionic equation for the reaction between copper in the brass nail and the concentrated nitric acid. So obviously मैं इस equation को तो use नहीं कर सकता, as we have discussed in electrochemistry के copper ions are highly unstable in aqueous medium. They will undergo disproportionation reaction. So I'm not going to use this equation. Instead, I will use this equation and this equation. And obviously मैं इस equation को इसलिए use कर रहा हूँ because concentrated nitric acid है. So this is nitric acid. All right. So I will use these two equations and obviously 2 marks का part है तो 1 mark जो है वो equation correct equation लिखने का होगा और 1 mark जो है वो equation balancing का होगा. Since it has more positive SCP value तो इस equation को मैं reduction form में as it is लिखूंगा, इस equation को मैं oxidation form में लिखने के लिए flip करके लिखूंगा. Since we have 2 electrons here, we have 1 electrons here, so we need to multiply this equation by 2. We need to cancel out the electrons and then we'll get the final equation. So I'm going to write the equation straight away, as we have discussed a lot of things in this regard in electrochemistry, right? So first I need to multiply this equation by 2 so that we can cancel out these electrons. So the final equation is going to be like this: 2NO3 minus plus 4 hydrogen ions. And we need to flip this equation. It has to be copper metal converted into copper ions plus 2NO2 plus 2H2O. All right. So that is going to be the correct answer, I believe. और आप नोट कर रहे हैं मैंने यहाँ पर कॉपर आयंस फॉर्म किए और एग्जामिनर ने मुझे क्लू दिया था कि कॉपर आयंस आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन. इसका मतलब ये जो कॉपर आयंस थे ये इस रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे. प्रोडक्ट है ये रिएक्शन की. ठीक है. एंड इफ यू रिमेंबर आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ा है मेटल्स के चैप्टर में कि व्हेनेवर कॉपर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ऑब्वियसली कॉपर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है जिसका डार्क ब्राउन कलर होता है. ठीक है. A small beaker was weighed using a balance accurate to 2 decimal places and its mass is recorded. The brass nail was placed in the beaker and the mass increased by 3.76 gram. Okay, 3.76 gram is the mass of brass nail. Whew, okay. Calculate the percentage error in measuring the mass of the nail. 2 decimal place का balance है तो 1 single reading का error होगा बेटा 0.005. रीडिंग को हम 2 टाइम्स लेते हैं इसलिए इंटू 2 करूंगा. मास जो एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है वो 3.76 है, इंटू 100 करेंगे एंड ऑब्वियसली परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 0.267%. तो हम यहाँ लिख देंगे 0.267%. ठीक है. और एग्जामिनर ने मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए तो मैंने भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दिया है. ठीक है जी. फिर वो कह रहे हैं 50 cm cube of concentrated nitric acid was added to the nail in the beaker. When the reaction finished and the nail had dissolved, the solution completely transferred to 250 cm cube volumetric flask. मतलब हम एक्चुअली स्टॉक सोल्यूशन बना रहे हैं यहाँ पर along the washings, यानी जो भी वॉश वगैरह करेंगे हम बीकर से उसको भी ट्रांसफर करेंगे, जो कि यूजुअली मैंने अभी 2 क्लासेस पहले आपको सिखाया था कि वॉशिंग्स भी ट्रांसफर की जाती हैं. द सोल्यूशन वाज मेड अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर. Concentrated nitric acid is corrosive. State one precaution related to this hazard
and that must be taken when using concentrated nitric acid. तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जब भी कोई एसिड या एल्कली क्रोसिव होता है तो आप हमेशा नाइट्राइल ग्लव्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लेटेक्स ग्लव्स. यूज नाइट्राइल ग्लव्स क्योंकि ये केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स होते हैं. आप यहाँ पर केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स भी लिख सकते हो. लेटेक्स ग्लव्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेटेक्स ग्लव्स जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हैंडल नहीं करता. वो केमिकल्स को हैंडल नहीं कर सकते. वो जनरल पर्पस के लिए होता है. जैसे मेडिसिन वगैरह मेडिकल के एग्जामिनेशन जब कर रहे होते हैं तो आप उसको यूज करते हैं. अदरवाइज उसको यूज करने की पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास. ठीक है. Okay. Concentration of metal ions in solution can be determined using calorimeter. Oh, not calorimeter, guys. Calorimeter. When light is passed through solution of metal ions, some of the line may be absorbed. Oh, that's a calorimetry experiment in which you need to make concentration of different concentration solution of metal ions, and by using them we can measure the absorbance of the solution. All right. और absorbance किसे कहते हैं वो बता देते हैं. The quantity of light absorbed is called the absorbance and it is measured by the calorimeter. The absorbance of solution of known concentration of copper 2 ions can be used to determine the unknown concentration of copper 2 ions. Okay, the solution of copper 2 nitrate of concentration 0.8 mole per dm cube is required for this investigation. Calculate the mass of copper 2 nitrate needed to prepare 100 cm cube of 0.8 mole per dm cube solution. Give your answer to 3 significant figures. So basically मुझे एग्जामिनर ने कॉपर नाइट्रेट का मास कैलकुलेट करने के लिए कहा है और मुझे एग्जामिनर ने वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दी हुई है. तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं इन दोनों को यूज करके मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट निकालूंगा. मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट के थ्रू मैं मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट निकालूंगा. दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. तो देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर नाइट्रेट contain 0.800 moles. राइट. तो अगर आपके पास 100 cm क्यूब है तो moles of कॉपर नाइट्रेट आपके पास हो जाएंगे 0.08 moles. ऑलराइट. MR of copper nitrate निकालें in order to calculate the mass of copper nitrate. तो कॉपर का AR होता है 63.5 प्लस नाइट्रोजन का 14 times 2 because we have 2 nitrogen atom plus oxygen has 16 into 6. So आपके पास MR आ जाएगा. Wait, yeah, it's fine. It's going to be, I believe, wait, let me calculate this. 63.5 plus 63.5 plus 14 times 2 plus 16 times 6. So it's going to be 187.5. 187.5. Now we need to find out the mass of copper nitrate. (187.5) multiplied by 0.08 moles. So it's going to be into 0.08 moles into 0.08 moles. 15 gram exact. तो 3 significant figures तक आंसर पूछ रहे हैं वो आपसे, right? So 3 significant figures तक आंसर है तो अब मैं लिखूंगा 15.0 gram.
ठीक है, ओके। A series of 10 solutions of different concentration of copper 2 ions are prepared by diluting volumes of 0.8 mole per dm cube copper 2 nitrate with distilled water. The total volume needed for each solution is 20 cm cube. इसका मतलब I'm not changing this. This volume needs to be constant for all 8, for all 10 solutions, right? So this volume needs to be same, needs to be same or constant. ठीक है, the absorbance of each solution is recorded in the colorimeter at a wavelength of light of 630 nanometer and recorded in the table. Complete the table to show the volume of 0.8 mole per dm cube copper 2 nitrate and distilled water needed to prepare each solution. Give all volumes to 2 decimal places. ओके, सारे के सारे वॉल्यूम जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे जाने, तो ये भी 2 dB पे जाएगा और ये भी 2 dB पे जाएगा। ओके, ओके गाइस, लुक, मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है, मुझे इसकी भी कंसंट्रेशन दी हुई है और मुझे इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। दिस वॉल्यूम नीड्स टू बी कांस्टेंट, राइट? सो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पर C1V1 इक्वल्स टू C2V2। C1 मेरे पास है 0.8, V1 मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, ये V1 है, ये कैलकुलेट करेंगे हम। C2 मुझे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दिस केस 0.04, यहाँ है 0.12, सही है, तो मैं 0.04 रखता हूँ। वॉल्यूम जो है वो 20 होना चाहिए, उसको कांस्टेंट ही रखना है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन के बाद, वेट, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.8। सो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, 0.04 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.8। सो बेटा मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 1 cm क्यूब, राइट? और उन्होंने कहा है कि आपने आंसर देना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रखूंगा 1.00। तो क्योंकि टोटल वॉल्यूम 20 होना चाहिए, यहाँ 1.0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 19.00 आ जाएगा, सो दैट टोटल वॉल्यूम 20 हो। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब मैं पता है क्या करूंगा, मैं इस कंसंट्रेशन को उठाकर यहाँ पर लिखूंगा, 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा, मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा। सेम मैं इस कंसंट्रेशन को उठाकर यहाँ रखूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा 0.8 से, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सो मैं जरा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, सो दैट टाइम कम लगे हमें इसमें, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 0.12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.8, सो इट्स गोइंग टू बी 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3.00 एंड फिर 0.16 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.8, सो इट्स गोइंग टू बी 4.00। फिर आपके पास है 0.22 इंटू 20 डिवाइड बाय 0.8, सो इट्स गोइंग टू बी 5.50। देन फिर आपके पास है 0.3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.8, सो इट्स गोइंग टू बी 7.50। देन फिर आपके पास है 0.36 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.8, तो इट्स गोइंग टू बी 9, तो मैं लिखूंगा 9.00। फिर है 0.42 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.8, सो इट्स गोइंग टू बी 10.50। चलिए जल्दी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12.00 और 15.00। इन ऑर्डर टू मेक टोटल वॉल्यूम 20 cm क्यूब, तो अगर ये 3 है तो इट हैज टू बी 17, ये 4 है तो इट हैज टू बी 16.00, ये 5.50 है तो इसका मतलब दिस हैज टू बी 14.50। फिर है आपके पास
7.5, then it must be 12.50. फिर आपके पास से 11.00, फिर 10.50 है तो 9.50, फिर 12 है तो 8.00, फिर आपके पास 15 है तो ये हो जाएगा 5.00. ठीक है. The total volume needs to be constant in all the cases. Name a suitable piece of apparatus used for accurately measuring the volume you have calculated in D part 2. आप जानते हैं कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक की रीडिंग्स हैं. 2 डेसिमल प्लेस तक की रीडिंग्स आप पिपेट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज पिपेट का जो वॉल्यूम होता है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट इन सारे वॉल्यूम्स को 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज ब्यूरेट, बिकॉज ब्यूरेट की मेजरमेंट 2 डेसिमल प्लेस तक होती है. ठीक है. सो ब्यूरेट लेंगे. बिकॉज it can measure up to 2 decimal place, that is plus 0.05 cm3. ठीक है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा था मैंने, ग्राफ पहले से प्लॉट किया हुआ है. आप लोग ग्राफ बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से प्लॉट करें. प्लॉट अ कैलिब्रेशन ग्राफ ऑफ एब्जॉर्बेंस जो कि वाई एक्सिस पे होगा, against concentration of copper ion which has to be on the x-axis. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. तो मैंने line of best fit यहाँ पर draw किया है. Most of the points are actually on the line of best fit or close to the line of best fit. इसका मतलब ये ग्राफ सही बना हुआ है, लेकिन आप लोग भी प्लीज एक मरतबा ग्राफ जरा अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे बनेगा. जरूरी है ये सारी चीजें. ठीक है. वो कह रहे हैं स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन एंड इट्स एब्जॉर्बेंस. तो आप नोट करें, ये एब्जॉर्बेंस थी आपके पास, ये कंसंट्रेशन है. जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है एब्जॉर्बेंस भी बढ़ रही है. तो ये लीनियर स्केच है, लीनियर ग्राफ है. तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. दैट मींस एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो हम यहाँ लिख देते हैं graph increases linearly which means concentration of copper ions is directly proportional to the absorbance of solution. फिर वो आपसे कह रहे हैं the absorbance of the solution prepared in sieve from the brass nail was found to be 0.56. Absorbance 0.56 है. Use your calibration graph to find the concentration of copper ion in the solution. Okay, 0.56 पे. So 0.56 actually ये हो सकता है 0.56 actually ये हो सकता है 0.56 this one ये होगा 0.56. ठीक है. सो ये 0.56 है आपका. नहीं, ये 1 2 this is going to be 0.56. ठीक है, चेक कर लीजिएगा केयरफुली. 0.56
तो ये आपका 0.56 है। उफ, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.18 आ रही है। नहीं, ये सही नहीं बना ग्राफ, एक मिनट, लाइन सही नहीं बनी। इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, माय बैड। आप प्लीज रूलर यूज कीजिएगा तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सो ये हो जाएगा, आई बिलीव मैं 0.18 ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज है 0.18 के। सो मैंने यहाँ से 0.18 मोल पर डीएम क्यूब ले लिया है, सही है, या 0.179 हो गई है, क्लोज टू दैट। फिर वो कह रहे हैं यूज योर आंसर टू F1। तो F1 में मेरे पास क्या आंसर है भाई, क्या चीज है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। फ्रॉम F पार्ट 1 what did I find? Concentration of copper ion, जो कि आपके पास कितनी है, 0.18 मोल पर डी एम क्यूब। फिर वो आपसे कह रहे हैं इंफॉर्मेशन इन बी। बी में क्या चीज है? बी में मुझे ब्रास नेल का मास मिला है 3.76 ग्राम। सो मैं यहाँ लिखूंगा, सॉरी बैक एंड फोर्थ जाना पड़ रहा है बार बार। फ्रॉम बी mass of brass nail 3.76 ग्राम। फिर वो कह रहे हैं आपसे एन सी। अब सी में जाके देखते हैं कि सी में क्या मिला था हमें। सी में मिला कुछ नहीं था एक्चुअली, हमने 50 सी एम क्यूब ऑफ सोल्यूशन को 250 सी एम क्यूब में कन्वर्ट किया था, राइट? ओके ओके ओके। तो सी से हमें क्या मिल रहा है? फ्रॉम सी 50 सी एम क्यूब of solution will turn to 250 cm cube। डाइल्यूशन की थी हमने, सही। आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर बाय मास इन द ब्रास नेल। गिव योर आंसर टू 3 significant figures। Okay, AR of copper is given। ओके, सो पहली तो बात ये है कि 1000 सीएम क्यूब में आपके पास 0.18 मोल है, तो 250 सीएम क्यूब में कितने मोल्स होंगे? जो मोल्स 250 सीएम क्यूब में आएंगे, उन उन मोल्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे मास में। ये जो मास आएगा उसको डिवाइड करेंगे इससे, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। सो दैट्स अ सिंपल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो सबसे पहला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर आयन कंटेन 0.18 मोल्स। सो अगर आपने 250 सीएम क्यूब बनाया था, सो बताइए कितने मोल्स होंगे? तो ये हो जाएगा 0.045 मोल्स, राइट? देन हम सब जानते हैं कि कॉपर आयंस और कॉपर मेटल के दरमियान 1:1 का रेशो है। तो अगर आपने 0.045 मोल्स फाइंड आउट किए हैं, तो मोल्स ऑफ कॉपर आपके पास सेम हो जाएंगे, 0.045 moles। AR of copper is given in the question, so we can find out the mass। So mass of copper कैलकुलेट करने के लिए 0.045 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 63.5 से।
सो आपके पास मास ऑफ कॉपर आ जाएगा और मास ऑफ कॉपर आएगा 2.8575 ग्राम। सही है। अब मुझे परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 2.8575 डिवाइडेड बाय 3.76 इंटू 100। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 75.997%। तो वो तो मुझसे कह रहे हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर मुझे आंसर देना है तो मैं राउंड ऑफ करके दूंगा 76.0%। ठीक है। And I think that's the end of the question number 2. Yeah, that's the end of the question number 2. So I believe you got this entire question. Thank you very much, guys. अपना ख्याल रखिए।